اچھا، ہمارے ایک ویور ہیں، ان کا نام ہے علی حیدر. اب انہوں نے ایک سوال کیا بخاری شریف کی حدیث کے اوپر. وہ حدیث ہے 3012. کہتے ہیں جی ملحدین اعتراض کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو مارنے کا حکم دیا. ملحدین اعتراض کرتے ہیں یہ تمہارے رحمت للعالمین ہے. جی صحیح بخاری کی حدیث ہے 3012. کہتے ہیں جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور مقام تھا ابوا او یوزان. تو کہتے ہیں اس مقام کے اوپر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا، ہم میں سے کسی ایک نے پوچھا، یعنی ان سے سوال کیا گیا ان گھر والوں کے لیے جو یہاں پر رات گزار رہے ہیں، مشرکین میں سے، یعنی عورتوں اور بچوں کے بارے میں. تو انہوں نے سوال کیا، کہتے ہیں مشرکین کے جس قبیلے پر شب خون مارا جائے گا، کیا ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کرنا درست ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہیں. اچھا، یہ حدیث ہے جس سے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے رسول نے ایک تو شب خون مارا رات کے ٹائم بغیر بتائے، اور دوسرا یہ کہا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کرنا درست ہوگا. جبکہ یہ سوال پوچھا گیا تھا، اس پر آپ نے کہا تھا کہ وہ انہی میں سے ہیں. اب یہ انہی میں سے ہیں کس چیز کا اشارہ ہے، اس کو ہم کھول کے بیان کریں. یہ تھی بخاری کی حدیث 3012. اب اگر یہ بھائی تھوڑا سا تردد کرتے اور دو حدیثیں بعد پڑھ لیتے تو ان کو کلیئر ہو جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی حکم کیا تھا، اور کیوں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ انہی میں سے ہیں، کیوں کہا تھا. دیکھیں اگلی ہی چند حدیثوں بعد، یعنی وہ 3012 تھی اور یہ حدیث ہے 3014 and 3015. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوہ میں آپ نے دیکھا ایک عورت جو ہے میدان کے اندر قتل کر دی گئی. تو حضرت اوپر والی حدیث پہلے 3014 دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے پر انکار ظاہر کیا. آپ نے کہا کہ نہیں قتل کرو ان کو. 3015 آپ حدیث دیکھیں اگلی. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کسی غزوے میں مقتول پائی گئی، یعنی اس کو کسی نے مرڈر کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا. اب یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، منع فرمایا. اب یہ بظاہر تضاد اٹھتا ہے. فیل یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ انہی میں سے ہیں، اور ایک جگہ قتل کیا گیا تو کہتے ہیں بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرو. تو ہم نے پہلے اس حدیث کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا تھا کہ ہمیں پتہ چلے یہ خاص مقام تھا، کیونکہ دیکھو راوی نے مینشن بھی کیا ہے کہ ابوا کا مقام تھا. یہ تھا کیا، اس کو پہلے سمجھے. قریش کا جو قبیلہ تھا اس کے چھوٹے چھوٹے دوسرے قبیلے حلیف تھے. حلیف کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کے پولیٹیکل الائنسز ہوتے ہیں، ایفیلیشنز ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر نیٹو ہے، نیٹو اس وقت بنی ہوئی ہے 20+ کنٹریز ہیں. تو ان کا الائنس اس چیز کے اوپر ہوا ہے کہ کوئی ٹیررزم یا کوئی ہم پر کو پریشر ڈالے گا تو سارے ملک اپنا اپنا فنڈ کریں گے، سپورٹ کریں گے. اسی طرح اسلامک کنٹریز کا بھی بنا ہوا تھا، OIC کا اتحاد بنا ہوا تھا، یا ابھی نارتھ تھنڈر فورس ہے الائنس بنا تھا کہ جس میں یہ تھا کہ کسی ایک ملک کے اوپر اٹیک ہوگا دوسرے ملک اس کی سپورٹ کریں گے. تو عربوں کے اندر بھی حلیف سسٹم ہوتا تھا کہ اس وقت جو طوائف الملوکی تھی، مختلف قبیلوں میں جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو ہر قبیلے نے اپنا اپنا سپورٹ کے لیے ایک حلیف چنا ہوا تھا. قریش کا ایک حلیف قبیلہ تھا جو بنو خزاعہ تھا. یہ قبیلہ قریش کے بہت زیادہ قریب تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش میں قبیلے سے باہر کچھ شادیاں ہوتی تھیں، لڑکیاں بھی جاتی تھیں اور لڑکے بھی لڑکیاں لے کے اس خاندان سے جاتے تھے، اور ادھر لڑکیاں بھی آتی تھی بنو خزاعہ میں سے. اس کی وجہ ہوتی تھی خانہ کعبہ کے ارد گرد متولیت کو مضبوط کرنا، کیونکہ عرب میں حجاز میں اس کو سپورٹ ہوتی تھی جس کے پاس خانہ کعبہ ہوتا تھا، تو وہ قریش کے پاس تھا. تو ہر قبیلے کا یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی طریقے سے کعبے والوں کے ساتھ یا قریش کے ساتھ تعلق مضبوط کرے. بنو خزاعہ کے ساتھ یہ تعلق تھا ان کا. بنو خزاعہ کی چھوٹی شاخ تھی مستلق، بنو مستلق. یہ جو بنو مستلق تھا ان کا لیڈر تھا حارث بن زرار. اس بندے کا کام کیا تھا کہ یہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد، چونکہ یہ جو مستلق تھا یہ مدینہ سے کچھ فاصلے کے اوپر، یہ غالباً ایریا اگر میں غلط نہیں ہوں تو مدینہ سے کوئی 9 یا 10 میل کے فاصلے پر تھا، یعنی اتنا قریب تھا. یعنی کہاں مکہ اور کہاں یہ قبیلہ مدینہ کے بالکل پاس، 9-10 میل کے فاصلے پر باہر کے ایریا کی طرف. تو جب مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ بندی ہوئی اور اس طرح کے معاملات چل رہے تھے کہ چھوٹی موٹی جھڑپوں کے بعد اب تھوڑا ٹھنڈا ماحول ہوا تھا، تو یہ قریباً واقعہ ہے 5 ہجری کا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا. ہوا ہی کچھ یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حارث بن زرار مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر فوج اکٹھی کر رہا ہے بنو مستعلق کے ایریا کے قریب جدھر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور وہ شب خون مارنے اور رات کے وقت حملہ کرنے کے ارادے کے ساتھ ہیں. یعنی وہ ہمیں خبر نہیں دے رہے مگر جنگ تیاری کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اڑتی ہوئی خبر کی تصدیق نہیں کر دی کہ بھئی چلو، آپ نے صحابی کو بھیجا، اور ایک صحابی ابھی مجھے ان کا نام بھول رہا ہے، وہ صحابی کو باقاعدہ بھیجا کہ جاؤ اس ایریا کی خبر گیری کر کے آؤ. اس نے جب رپورٹ سے اکٹھی کی، اس نے آ کے اللہ کے رسول کو بتایا، یا انٹیلیجنس اکٹھی کی، تو اس نے آ کے بتایا صحابی نے کہ اللہ کے رسول بات تو سچ ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈلا ہوا ہے اور لوگ تو تیاریاں کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس کو سریہ یا غزوہ بنو مستعلق بھی کہتے ہیں، یہ چھوٹی سی ایک جھڑپ تھی. اب میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا ڈیٹیل کے اندر، یہ بیک گراؤنڈ تھوڑا دے رہا ہوں. تو اللہ کے رسول اس حارث بن زرار نامی شخص کی اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے
آپ ऑफेंसिव मोड के अंदर निकले और आपने बगैर बताए वहां जाकर पड़ाव डाल दिया उनके करीब, रात के बिल्कुल करीब। बुखारी शरीफ के अंदर और फुकाहा जमहूर का इस पर मौकफ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब खून मारने से मना फरमाया हुआ है। सिर्फ एक्सेप्शनल कुछ जगह थी जिधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को गाफिल रखते हुए उस पर हमला किया, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सख्त खिलाफ थे कि जिस जगह पर जंग लड़ी जाए या जिसके ऊपर हमला किया जाए उसको पहले इतला ना दी जाए। हमेशा आप पेशगी इतला देते थे, ऐलान होता था, मुअज्जिन ऐलान करते थे कि भाई जंग होने लगी है तैयारी, तब जाके सुबह के वक्त जंग होती थी, कभी शब खून नहीं मारा था। मगर ये चूंकि ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर था और अगर ये अटैक करता उस वक्त तो मुसलमानों को खबर भी नहीं होनी थी कि उनके साथ क्या होना था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वहां जाकर पड़ाव डालो। अब वहां पड़ाव डाला तो वो बेसिकली उनके घर थे। आप इस हदीस के बाब के अंदर देखें तो आपको पता चलेगा कि हुआ क्या। हदीस आपके सामने है, आप इसका चैप्टर पढ़ें। चैप्टर है बाबू अहले दारी युबय्यितूना, घर वाले, यानी ये जंग मैदान जंग में नहीं होने वाली थी, ये मोहल्ले के अंदर जंग चली गई थी। अब आप समझ रहे हैं, मोहल्ले के अंदर, यानी कोई जंग जब स्ट्रीट्स तक या सिटी के अंदर आ जाती है जंग, तो उस वक्त जंग की नोयत और होती है। मैदान जंग के अंदर जंग की नोयत उसूल और होते हैं, जब वो स्ट्रीट्स के अंदर, गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर चली जाती है जंग तो उसके हालात और होते हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहां पड़ाव डाला तो उस वक्त किसी सहाबी ने ये सवाल किया, जैसे साहब बिन खुदा की बात हो रही है, उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, वहां की जो औरतें हैं और बच्चे हैं, अब तो ये हम गलियों मोहल्लों में आ गए हैं, ये तो सामने घर नजर आ रहे हैं, और वो सहाबी कहते हैं हम सामने देखते थे कि वो अपने ऊंटों को पानी पिला रहे थे, हम उनकी औरतों को देखते थे, उनके बच्चों को देख रहे थे सामने। तो हमने कहा अल्लाह के रसूल, ये तो सामने बच्चे और औरतें हैं, तो हम बड़े खतरे के लिए निपटने जा रहे हैं, ये बीच में तो ये बच्चे भी आ जाएंगे, औरतें भी आ जाएंगी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये उन्हीं में से हैं। अब जंग की दो ऑप्शन थे आपके पास, या तो आप वहां से वापस चले जाते और वो आप पर हमला करते और आपको नुकसान होता, और दूसरा ये है कि आप वहां पर रुक कर उन पर हमला करते और आप नुकसान से अपने आप को बचा लेते। अब हुआ क्या, ये बज़ाहिर नजर आता है कि जनाब मुल्हिदीन ये पेश करते हैं हदीस पेश करके कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को भी उड़ा दिया, औरतों को भी उड़ा दिया, जनाब कहा कि ये भी उनमें से हैं, इनको कत्ल कर दो। हुआ कुछ भी नहीं, चुंगे चुं। हाँ जी, अब सीरत की जितनी किताबें हैं, इब्न हशाम निकाल, जो मैंने तफसील बताई, इब्न हशाम निकाल के देखें, तबकात इब्न साद निकाल कर देखें, आप जदीद सीरतों के अंदर से रहमत लिल आलमीन काजी सुलेमान मंसूर बरी निकाल के देखें, सैयद सुलेमान नदवी की और शिबली नुमानी साहब की जो सीरतुन नबी है उसको निकाल कर देखें, क्योंकि उन्होंने ओरिएंटलिस्ट वगैरह के इतराज़ात दिए हुए हैं, तो वो बड़ी तकाबली सीरत है इस वाले। तो आप देखें कि उस सीरत के अंदर उन्होंने बयान किया, पता है कितने लोग मरे थे टोटल? 10 बंदे, एक औरत भी नहीं मरी। ये जो मुल्हिदीन कहते हैं ना, ये जो जंग हुई है जिस हदीस में कहा जा रहा है कि जनाब इनकी औरतें और बच्चे भी उनमें से हैं, एक भी औरत या बच्चा नहीं मरा, 10 बंदे मरे हैं और 600 बंदे कैदी कर लिए गए। हुआ कुछ यूं कि जब ये अटैक हुआ तो हारिस बिन ज़रार जो है उसको खबर मिली कि ये तो हमारे घर के अंदर घुस आए हैं, तो वो भागा वहां से, और उनकी बेटी थी जवेरिया जो बाद में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकद में आई। वो एक लंबा वाक़या। ग़ज़वा बनी मुस्तलक जो है ये इस हवाले से मशहूर है कि इसमें सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उनके औरतें और बच्चे उन्हीं में से हैं। अब आ जाते हैं हम टिपिकल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमने पहले कहा है कि इस्लाम को हम सिर्फ धर्म और मजहब के तौर पर नहीं देखते, हम इसको पूरे सिस्टम के तौर पर देखते। मिलिट्री जो है इसकी पूरे प्रोसीजर और पूरा एक सिस्टम है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज की इजाजत, जिस खतरे को सामने देखते हुए इजाजत दी थी उसको कहते हैं कोलैटरल डैमेज। मिलिट्री की एक टर्म है जिसको कहते हैं कोलैटरल डैमेज, और ये कब होती है? जब मिलिट्री ने कोऑपरेशन करना होता है। आपके सामने मरियम वेबस्टर जो है इसकी कोलैटरल डैमेज की मैं डेफिनेशन सामने रख देता हूं। ये कहते हैं इंजरी इन्फ्लिक्टेड ऑन समथिंग अदर देन एन इंटेंडेड टारगेट, स्पेसिफिकली सिविलियन कैजुअलिटीज ऑफ अ मिलिट्री ऑपरेशन। वो कहते हैं कोलैटरल डैमेज जो होता है ऐसा जख्म या ऐसा हमला या ऐसा अटैक कि जो इरादे के साथ किया जाए, पूरे इरादे के साथ, कि जिसके अंदर चांसेस हों कि हो सकता है कि यहां पर सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती हैं, यानी आम जो सिविलियन यानी इनोसेंट ह्यूमन बीइंग है वो मर सकते हैं, या माली नुकसान हो सकता है, स्कूल बिल्डिंग्स उड़ सकती हैं, हॉस्पिटल उड़ सकता है, कोई बैंक उड़ सकता है, कोई हो सकता है ऑफिस उड़ जाए, ठीक है, पार्क उड़ जाए, ये चीजें हो सकती हैं। तो मिलिट्री ऑपरेशन में कोलैटरल डैमेज की इजाजत हमें मिलती है। अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि कोलैटरल डैमेज की वजह से क्या हम ऑपरेशन को रोक दें? क्या बड़ा नुकसान होने दें छोटे नुकसान की वजह से? तो मिलिट्री ऑपरेशन के तहत एक ओपन लेटर लिखा गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से 2006 के अंदर। और वो लेटर क्यों लिखा गया था? क्योंकि उसमें इराक वॉर के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस थी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को और मुस्लिम कम्युनिटीज को थी। वो लेटर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फरवरी 2006 के अंदर अपनी फाइंडिंग्स देता है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का प्रोसिक्यूटर होता है वो कहता है 240 के करीब मुख्तलिफ कम्युनिकेशंस कंसर्निंग द सिचुएशन इन इराक, इराक के हवाले से
जो नाटो ने वहां पर तबाही मचाई है, खासकर यूके का सबसे ज्यादा हाथ था उसके अंदर, यही वजह कि टोनी ब्लेयर बाद में मुंह छुपाता फिरता था। तो उन्होंने कहा कि जनाब इस पर एतराजात किए गए हैं। दीज कम्युनिकेशंस एक्सप्रेस द कंसर्न ऑफ न्यूमरस सिटीजंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस रिगार्डिंग द लॉन्चिंग ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एंड द रिजल्टिंग ह्यूमन लॉस। वो कहते हैं हमारे सामने ये कंसर्न रखा गया कि मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे में ह्यूमन लॉस हुआ है। जिस तरह मुल्लिन ये कहते हैं कि एक मिलिट्री, जो दारी बात है, जंग हो रही, मिलिट्री ऑपरेशन गया है, तो उस वक्त की जो मिलिट्रीज होती थी ऑब्वियसली वो वॉलंटियरली लोग उसमें शामिल होते थे, को प्रॉपर लोगों ने फौजें, मुल्कों ने फौजें तो नहीं बनाई होती थी। तो इन्होंने कहा जी वो आई हैं तो उसमें लॉस हुआ है। नीचे वो लिखता है, कहता है while sharing regret over the loss of life caused by the war and its aftermath, as the prosecutor of the International Criminal Court, I have a very specific role and mandate. As specific, वो कहता है मेरा ये रोल है सारा, उसमें वो बयान करता है। ये 10 पेजेस के ऊपर ओपन लेटर है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो प्रोसिक्यूटर है उसने लिखा है। इसका चंद इक्तबासात मैं आपके सामने रखता हूं कि वो क्या कहता है कोलैटरल डैमेज के ऊपर। और इस सूरत में दोस्तों ये कह रहा है कि जब आपको आंखों से नजर आ रहा हो कि ह्यूमन लॉस होगा, आपने तब कोलैटरल डैमेज की बुनियाद के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन आप कर सकते हैं। क्या ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ऊपर जायज है कि नहीं जायज है, ये देख लें। इनकी प्रोग्रेसिव सोच है वो क्या कह रही है, और ये मुसलमानों के ऊपर एतराज मुल्हिदीन कर रहे होते हैं। ये देखिए जी पेज 4 और 5, उसमें वो कहते हैं कि इल्जाम लगाया जाता है, उसका चैप्टर की हेडिंग उसने पूरी दी है, एलिगेशंस कंसर्निंग वॉर क्राइम्स, एलिगेशंस कंसर्निंग द टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस और क्लियरली एक्सेसिव अटैक्स। वो कहते हैं द ऑफिस रिसीव्ड, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, ऑफिस रिसीव्ड मेनी एलिगेशंस रिलेटिंग टू सिविलियन डेथ्स, इंजरीज एंड डैमेज अकरिंग ड्यूरिंग द मिलिट्री ऑपरेशंस बिटवीन मार्च एंड मई 2003। वो कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऑफिस को बड़े इल्जामात मौसूल हुए हैं कि बड़े तादाद पर सिविलियन की डेथ हो रही है, जख्मी हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर इमारतों का माली नुकसान हो रहा है उन मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जो मार्च से मई, 3 महीने, मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने 2003 के अंदर हुआ है इराक के अंदर। ये जो अगला पैराग्राफ है ना, इसको आपने गौर से पढ़ना है, सफा 5 के ऊपर। कहते हैं अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड द रोम स्टैट्यूट द डेथ ऑफ सिविलियंस, कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन यानी इंसानी हकूक के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और जो रोम स्टैट्यूट है ये बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की पूरी एक किताब है कानून की, उसमें प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं सारे। इन दोनों के मुताबिक वो कहते हैं द डेथ ऑफ सिविलियंस, मासूम लोगों का, शहरियों का मरना, ड्यूरिंग एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जंगों के दरमियान, नो मैटर हाउ ग्रेव एंड रिग्रेटेबल, इसमें कोई मजा का नहीं है कि वो कितना दुख वाला हो या कितना शर्मिंदगी का बायस हो, डज नॉट इन इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ वॉर क्राइम, ये हकीकत के अंदर कोई वॉर क्राइम में आता नहीं है। समझ रहे हैं आप? आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान अगर लोगों की मौत भी हो जाती है तो ये कितना ही पशमान क्यों ना हो, इसको वॉर क्राइम के अंदर नहीं आएंगे। आगे जरा देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे ये जो इस्लाम पे इल्जाम लगाते हैं। कहते हैं जी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड द रोम स्टैट्यूट परमिट बेलिजरेंट्स टू कैरी आउट प्रोपोर्शनेट अटैक्स अगेंस्ट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। वो कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है और रोम स्टैट्यूट है, ये बेसिकली इजाजत देता है कि ऐसे अटैक्स मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इवन व्हेन इट इज नोन दैट सम सिविलियंस डेथ और इंजरीज विल अकर, यहां तक कि आपको ये पता हो कि मासूम लोगों की जान भी हो जाएगी, नुकसान भी होगा और वो कत्ल हो जाएंगे, ये आपको परमिट करता है। अ क्राइम अकर्स इफ देयर इज एन इंटेंशनल अटैक डायरेक्टेड अगेंस्ट सिविलियंस, कि जुर्म तो तब होता है कि जब आप इंटेंशनल अटैक सिर्फ सिविलियंस को फोकस करते हुए करें, तब जुर्म होता है। आपने डायरेक्ट सिविलियन को तो अटैक नहीं किया था, आप तो उन कबीलों को, उन लोगों को अटैक करने जा रहे थे जिन लोगों ने तैयारी की हुई थी आपके खिलाफ। तो जब सहाबा किराम ने पूछा कि इन बच्चों का क्या करना है, तो आपने कहा भाई ये तो कोलैटरल डैमेज है, कि हम एक ऑब्जेक्टिव लेकर निकले हैं कि हमने ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि उस ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने कितनी बड़ी बात की है। सर जरा देखें, अब उन्होंने जिस आर्टिकल से दिया, ये जिनेवा कन्वेंशन से दिया। जिनेवा कन्वेंशन जो है उसको जनाब दुनिया मानती है। ये सफा 5 के ऊपर उसमें 11 नंबर पॉइंट था, उसका उन्होंने दिया है रेफरेंस। वो कहते हैं आर्टिकल 52 ऑफ Additional Protocol 1 to the Geneva Conventions provides, Additional Protocol जो है बेसिकली Geneva Conventions को मर्ज किया गया था, क्योंकि ये 4 बड़ी बड़ी कन्वेंशंस डिफरेंट टाइम पे हुई हैं ऑनवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 2 तक, तो उनको मर्ज किया गया है। उसका आर्टिकल 52 वो कह रहे हैं प्रोवाइड्स अ वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। वो कहते हैं जो अस्करी ऑब्जेक्टिव होता है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है, यानी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की एक बड़ी वसी डेफिनेशन की है। क्या डेफिनेशन की है? वो कहते हैं इन सो फार as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use
make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture and neutralization in the circumstances ruling at the time offers a definite military advantage. इसका खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये आपको महदूद करता है आपके ऑब्जेक्ट्स को उस तरफ कि आप जिस नोयत का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस जगह पर कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, अगर उस दौरान में कोई नुकसान हो जाता है, किसी को मारना पड़ जाता है, किसी को न्यूट्रलाइज करना पड़ जाता है उन खास हालात के अंदर, और आपको मिलिट्री का वो मखसूस ऑब्जेक्टिव या मुख्तलिफ एडवांटेज मिल रहा है, तो आप वो कर सकते हैं, उसको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुस्तलक के अंदर जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहा था वो ये था कि हारिस बिन ज़रार की जो साजिशें हैं कि मुशरिकीन मक्का के साथ मिलकर मदीना को दबाव में डाले, आपने वो हासिल किया। उसकी वजह यह है कि गज़वा बनु मुस्तलक के बाद हजरत जुवेरिया जो हारिस बिन ज़रार की बेटी थी, जब वो आपके निकाह के अंदर आई, वो पूरे का पूरा कबीला आपके ताबे हो गया था, पूरे का पूरा कबीला, और मुशरिकीन मक्का के साथ बाइकाट हो गया। उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ, यही वजह है कि वो फिर ग्राउंड पर आए थे सुलह हुदैबिया के लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिलिट्री स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया, और आपने बिल्कुल ठीक किया कि आपने कहा कि ये कोलैटरल डैमेज होगा। अदरवाइज ये है, मिसाल के तौर पर एक आपका दुश्मन है, वो गली के अंदर घुस गया है, सिविलियन के अंदर घुस गया है, और आपको पता है कि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो पूरी इंसानियत का नुकसान हो जाएगा, या इससे बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक की तंजीमें सारी कोलैटरल डैमेज को मानती हैं, हालांकि उसमें सहाफी भी मरते हैं, उसमें स्कूल टीचर्स भी मर जाते हैं, उसमें डॉक्टर्स और नर्सेज भी मरती हैं, उसमें आपके ट्रांसपोर्ट वाले भी मरते हैं, मगर उन सब को बड़े खंदा पेशानी के साथ कोलैटरल डैमेज का हिस्सा बना के कबूल किया जाता है। उस वक्त तो इंसानियत नहीं शर्माती, क्योंकि वॉर स्ट्रेटजी ये है। आप मुझे बताएं दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पॉसिबल नहीं।